Welcome students. So today we'll discuss CBSE board sample paper question. Board sample paper question is not just a paper, it is a blueprint which is given by the CBSE. If you want to score 90 plus, so please be with us. Here the guidelines that question paper contain 34 questions and marks are indicated against each question. And here we will get 20 MCQs and 4 3 marks question and 6 4 mark question. And after that we'll get 4 6 marks question which will be in the case study or in the direct form. So let's start. Question number 1. Here is a strategy about case study. Do not read the case study from the first line. Try to read your case study from the question which is given in the bottom of the case study. And after that you just analyze the question, what they are asking. You just remind the topic and then start read the case study and you will get the answer in a one stroke. Let's have a case study. The project manager in an organization set targets for the upcoming months and outline strategies to achieve them. At the same time, they assign specific roles and responsibilities to their team members. They motivate them to meet the deadline by celebrating their achievements and taking their feedback. Thus, various functions are simultaneously performed by all the manager all the time. Here we'll get the characteristics. We'll find out the characteristics among all the options. Like first one option is, first we will focus on that option which is inappropriate in among 4. ऑलवेज फोकस कि जो 2 ऑप्शंस होते हैं वो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट होते हैं और जो अदर 2 ऑप्शंस होते हैं बेटा वो हमेशा अप्रोप्रिएट होते हैं, नियर बाय होते हैं और हमें उसमें से एक बेस्ट ऑप्शन ऑप्ट करना होता है. मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन. डायनेमिक विच इज चेंजेबल. यहाँ पर कुछ भी चेंज करने की बात नहीं हुई है, विच इज अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ सिचुएशन, एनवायरमेंट एंड ऑल. Here it is a continuous. We will think about the continuous because it is looking a appropriate option like simultaneously work and performed by all managers and all the time. This is the key line of this feature. Again we'll get on third option. This is intangible force. Intangible के बारे में भी यहाँ पर कोई भी बात उन्होंने नहीं की है. एंड लास्ट वन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. गोल ओरिएंटेड प्रोसेस के लिए भी यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है. तो हमारा जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, दिस इज ऑप्शन बी. मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस. मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. सो दिस इज द राइट आंसर. Question number 2. Henry Fayol principles of discipline which emphasize obedience to organizational rules and employment agreements is evolved out of the experience and collective wisdom of managers. The nature of principle of management reflect through the above case. First is universal applicable. Second one is flexible. Third is mainly behavioral. And fourth one is formed by practice and experiment. Here we will go with the options like universal. There is no line for any universal applicability. There is no line for flexibility and there is no any key line for mainly behavioral. Because discipline की बात हो रही है, employment agreement की बात हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर हम collective wisdom और decision और experience की बात कर रहे हैं. So here will be option D, formed by practice and experimentation. So we'll go with option D, formed by practice and experimentation. So now
we'll talk about question number 3. Here is a assertion and reasoning. So always keep in your mind when we are doing assertion and reasoning में हमें क्या करना होता है कि when we are reading assertion हमें उसके पीछे because लगाना है और reason को read करना है. When you have read collective reason and assertion, after the reason you put that's why and again read the assertion, so you will get the proper picture, proper theory with this. So let's have a question. Yes, if we are reading assertion, Maslow's need hierarchy theory of motivation is widely recognized and appreciated by yet criticized. ही सेइंग कि मास्लो की जो थ्योरी है वो एक हायरार्की मोटिवेशनल की थ्योरी है और उसको वाइडली रिकॉग्नाइज करके अप्रिशिएट भी किया गया है. ठीक है, और रीजन अगर हम पढ़ते हैं, अब हम लगाते हैं बिकॉज even though Maslow's theory focus on needs as a basis of motivation helps to develop understanding and about the motivation phenomena, his proposition are questioned on their classification and hierarchy. If we recall the Maslow hierarchy theory, तो यहाँ पर हमने फोकस करना है कि मास्लो की जो थ्योरी है इट्स लाइक अ पिरामिड और वहाँ पर 5 स्लैब्स आपको गिवन हैं, 5 theories according to the human needs and human motivation वहाँ पर given है. And here they are talking about the question on their classification and hierarchy, motivation. तो अब देखिए ऑप्शंस क्या है हमारे पास. both assertion and reasoning are true. Yes, it is true. But we have another option that R is a not correct explanation or correct explanation. If we are reading this, तो ये जो एक स्टेटमेंट है ये इस स्टेटमेंट को प्रॉपरली सेटिस्फाई कर रहा है. सो विल गिव द आंसर दैट assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. So here we will take option D. So now we'll have a next question. This is the question number 4. Again, these are the statements. Look, and we'll have to find out that which statement is correct, which statement is correct. Here are 2 statements, like 1 or 2. If the both are correct, both are false, one is correct or one is wrong. Let's have a statement. Values are basic truth or guidelines or behavior which are formed after research in work situation. And statement 2 अगर हम read करते हैं बेटा, तो while practicing principles of management, values cannot be neglected as business organization have to fulfill social and ethical responsibility. अब अगर हम स्टेटमेंट 1 की तरफ फोकस करते हैं तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल्स में कहीं भी वैल्यूज़ के रिगार्डिंग कोई भी पॉइंट हमने अभी तक नहीं पढ़ा है. हमने फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ी है, हमने मेनली बिहेवियरल पढ़ा है, बट हमने वैल्यूज़ के रिगार्डिंग ऐसा पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट रीड नहीं किया है. और अगर हम ऑप्शन 2 पर आते हैं, स्टेटमेंट 2 पर आते हैं, तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करते हो तो आप वैल्यूज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो और आपको सोसाइटी में रहते हुए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना पड़ेगा. सो स्टेटमेंट 1 is false and 2 is right. तो यहां पर हमारा ऑप्शन डी आता है, this one. Now let's have a question number 5. Manupriya is working as a human resource management of EDT Limited Management at an annual salary with rupees 8 lakh and is also offered shares of the company which is a less than with the market share. अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो अनु है उसको जो वो वेजेस या सैलरी जो भी वो दे रहे हैं वो किस बेस पर दे रहे हैं. फर्स्ट वन इज टाइम बेस्ड डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट. येस, दे आर गिविंग डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट, बट इसके अलावा भी वो उसको कुछ दे रहे हैं. लाइक इनडायरेक्ट, इट इज़ नॉट appropriate answer.
टाइम बेस्ड, पे प्लस एंड परफॉर्मेंस बेस्ड. परफॉर्मेंस बेस्ड यहाँ नहीं है बिकॉज वहाँ पर कोई भी टास्क, वहाँ पर कोई गिवन टाइम, ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं गिवन है. तो हमें यहाँ पर करना होगा टाइम बेस्ड पे प्लस इंसेंटिव. कि टाइम बेस्ड है क्योंकि एनुअल एनम उन्होंने यूज़ किया है और उसके साथ वो उसको एक एक्स्ट्रा कंपनी के शेयर भी दे रहे हैं विच इज़ लेस देन द मार्केट प्राइस. I hope you all are okay with this. Now we have a next question. In this question, we'll have to find out that which option is correct or which is not according to the given situation. Like they are asking that out of the following statements, there are 5 statements. Out of these statements, which statement is नियर बाय द सोशल एनवायरमेंट. ठीक है, अब यहाँ पर हमें पहले ऑप्शंस नहीं देखने हैं. वॉट एवर दे हैव गिवन, वी जस्ट रीड द स्टेटमेंट्स एंड विल फाइंड आउट कि कौन सी स्टेटमेंट कौन से एनवायरमेंट को टिक करती है. फर्स्ट वन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन. अब अगर हम यहीं से बात करते हैं कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज़ इंक्रीज्ड बाय दिस नंबर, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमने अगर स्टार्टिंग से पढ़ा हो बिजनेस एनवायरनमेंट में चैप्टर 3, वहाँ पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में डायरेक्ट हिट करता है. टैक्सेस, इन्फ्लेशन रेट, बैंक रेट, CR, ये CRR, ये सब चीज़ें. ठीक है, तो इट विल नॉट बी ओके. Now the next statement, various specially health food and grocery shops have opened in an area where fitness and gyms and health enthusiastic lifestyle is there. So if we are talking about health, sanitation, standard of living, ये सब किसका पार्ट आता है? सोशल का पार्ट आता है. तो it will work with us. Next is life expectancy rate in India. अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो सोशल एनवायरनमेंट में हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, मोर्टालिटी रेट, बर्थ रेट, वुमेन, ये सारी चीज़ों को हम रिकॉल करते हुए चलते हैं. एंड दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट. इट विल ऑल्सो वर्क. नाउ अ कंपनी इन इट्स ह्यूमन रिसोर्स, डायरेक्टली उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स दिया. मैनुअल डिस्क्लोजेज, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर डायरेक्ट हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो ये सोशल एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है. नेक्स्ट वन, अब 2, 3, 4 हमारा डन है. नेक्स्ट 5 पर आते हैं. 5 में दिया हुआ है द एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एंड advertisement that promote produce or services that are banned by law. अब यहाँ पर इन्होंने banned word भी यूज करा है, law word भी यूज किया है, standard council, prohibited. These all are comes under in legal environment. तो ये भी statement हमारे लिए work नहीं करेगी. So now we will see the options what they have given. So here are the options, only 2, only 1, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 4, 5. तो हमने 1 को दिया था इकोनॉमिक एंड 5 को दिया था लीगल एनवायरनमेंट. और जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस थे, इट इज गोइंग विद ऑप्शन डी. तो हेयर वी विल राइट द ऑप्शन डी. Now the next question, name the element of marketing mix which include deciding about the feature, quality, packaging, labeling and branding. तो ये देखिए, इसको पढ़ने से ही पता लग रहा है. एंड ब्रांडिंग, एनीथिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच इज ऑफर्ड बाय द मार्केट फॉर सेल. तो ये मार्केटिंग मिक्स के कौन से एलिमेंट से वर्क करता है? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, ये किस में आता है? ये सबसे पहले वाले P प्रोडक्ट में आता है. तो आई थिंक देयर इज नो ऑप्शन टू थिंक मोर कि हम इसमें और ज़्यादा टाइम खराब करें. लेट्स हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंट्रोलिंग फंक्शन. कंट्रोलिंग फंक्शन के लिए हमें एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है.
No corrective action is required when the deviation goes beyond the acceptable range. No, always we are taking corrective measures. So this is not appropriate with us. Deviation should be analyzed with their cause. जब हम कंट्रोलिंग का प्रोसेस रीड करते हैं वहाँ पर एनालाइजिंग द डेविएशन आता है और हम डेविएशन को फाइंड आउट भी करते हैं विच इज़ अ MBE और CBC. नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी डन ओनली आफ्टर द टास्क इज कंप्लीट. नो, वाइल परफॉर्मिंग द टास्क हम तभी उसको एनालाइज करते हैं और तभी उस पर हम एक प्रॉपर एक्शन ले लेते हैं, तभी तो उसको कंट्रोलिंग कहा जाता है. अगर आप टास्क के कंप्लीट होने के बाद कोई भी डेविएशन का पता लगाओगे तो दिस इज यूजलेस. Manager must keep a check on each and every activity, otherwise the entire organization may suffer. No, manager cannot keep on check on these. They have hired a supervisor for this. So we have a statement 2, option B. Deviation should be analyzed with their causes. हम deviation को analyze करते हैं उसके reason के साथ. So here is option B. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पिक्चर क्वेश्चन. पिक्चर क्वेश्चन के लिए लुक एट द पिक्चर. आई एम लुकिंग फॉर जॉब, कैन यू रेफर मी. जॉब से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो किस में आता है हमारे चैप्टर में. वी आर हैविंग अ 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. दिस इज POSDC: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. Identify the incorrect statement. What about the type of source of recruitment deficit above? अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे एक मिस्टेक करते हैं कि हम अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चुनते हैं. वो ये कह रहा है कि आपको वो इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है. करेक्ट गिवन होगा, उसमें एक इनकरेक्ट होगा, वो आपको ऑप्ट करना है. तो जो दूसरे बच्चे गलती करते हैं वो हमें अवॉइड करनी है. नाउ विल रीड द statement. Management can attract qualified people to apply for vacant position. Yes, always. Recruitment जिसमें हम पढ़ते हैं. नेक्स्ट है इसमें हमारा it may lead to dissatisfaction and frustration among existing employees. अगर वो लोग बहुत ज़्यादा ओवरस्टाफिंग या ज़्यादा हायरिंग करते हैं तो वहाँ पर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं. ठीक है, ये एक डिसएडवांटेज में आता है जहाँ पर हम फ्रेश टैलेंट की अपॉइंटमेंट करते हैं. थर्ड वन इज सच एम्प्लॉयज आर नॉट लाइकली टू बी गुड एम्प्लॉयज एज देयर बैकग्राउंड इज नॉट sufficiently known. No, management has a wider choice while selecting the people. So these 3 statements are working with us. Is we are getting in our chapter, this is we are getting in this chapter, and this is also we are getting in this chapter. But such employees are not likely to be good employees as their background is not sufficient known. अगर कोई जॉब आपसे मांग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बैकग्राउंड खराब है या वो इनअप्रोप्रिएट पर्सन है सो दैट वो आपसे जॉब मांग रहा है. तो ऑप्शन C इज अ इनकरेक्ट ऑप्शन. तो वी आर हैविंग दिस ऑप्शन एज अ आंसर, ऑप्शन नंबर C. Now we'll have to arrange the elements of communication. So students, I'm having a trick to do this. If you are doing in this trick, तो आपको ऑप्शंस बाद में देखिएगा, पहले आप खुद से देखिएगा. सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले कौन है जो मैसेज को भेज रहा है. सेंडर. एंड हु इज रिसीविंग? रिसीवर. अब रिसीवर के साथ एक चीज ऑटोमेटिकली अटैच होती है, दैट इज अ फीडबैक. फीडबैक इन द सेंस ऑफ हाँ, यस, नो, दिस इज कॉल्ड फीडबैक. व्हेन वी आर टॉकिंग विद समवन तो हम उसको रिस्पॉन्स देते हैं, दिस इज कॉल्ड फीडबैक. और वो फीडबैक कौन देता है? रिसीवर देता है. और ये फीडबैक जो होती है वापस सेंडर के पास चली जाती है. अब सेंडर हमें क्या भेज रहा है? ऑटोमेटिकली बात है, ऑब्वियस सी बात है, ही इज सेंडिंग मैसेज. ठीक है. अब मैसेज को क्या किया जाता है, लाइक मैं आपसे अगर कोई बात कहती हूं
तो मैं उसको टाइप करूँगी या लिखूँगी या मेल करूँगी या कुछ भी करूँगी, तो मैं एनकोड कर रही हूँ इन एनी ऑफ द लैंग्वेज, एनी ऑफ द गेस्चर, एनकोडिंग। और रिसीवर उसको क्या कर रहा है, डीकोडिंग। और मीडिया है इनके बीच में, वाया मीडिया। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू दिस, अब हम इसमें देखेंगे, अब आप इसमें इसके अकॉर्डिंग नंबर डालिए, आपके पास अपने आप ऑप्शन करेक्टली आ जाएगा। देखिए, सेंडर इज गिवन ऑन 3, message is given on 2 and encoding on 7. Media is on 1. Decoding is on 4th. Receiver is on 5 and feedback is on 6th. अकॉर्डिंग टू दिस आप अपने ऑप्शन करेक्ट कीजिए। देखिए यहां पर थर्ड, तो ये वाले के बाद आ रहा है 1 और हमारा आ रहा है 2। नेक्स्ट हम फिर से मिलाते हैं, 7th, देन 1, देन 4, देन 5, देन 6। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। वी शुड नेवर go with these type of options directly. Always we will try to solve this. Like अगर कोई प्रोसेस है वो आपको याद है तो पहले आप उसको अपने माइंड में एक बार रिकॉल कीजिए, रिवाइज कीजिए और उसको रफ में फटाफट लिखना स्टार्ट कीजिए। आप जब आप उसको लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपको वो सारा एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। अब आप अपने आंसर को उसके ऑप्शन से टेली कीजिए। यू ऑलवेज get a right answer. So now we'll do next question. I hope you all are getting my answers. Choose the correct statement about the meaning of depository. Depository के regarding आपको एक correct statement इसमें देखना है कि which is the correct statement regarding this. Depository hold and transfer securities in the demat form? No. Depository serves as an intermediary and buy and sell securities on the instruction of clients? No. Depository is like a bank and keep securities in electronic form on behalf of इन्वेस्टर्स। यस, डिपॉजिटरी एक मीडिएटर का काम करता है, काइंड ऑफ बैंक का काम करता है जहां पर आपकी सारे अमाउंट को वो सेव रखता है। डिपॉजिटरी बाय सिक्योरिटीज फ्रॉम अ कंपनी एंड सेल टू द पब्लिक एट अ हायर प्राइस? नो, इट्स नॉट अ वर्क ऑफ डिपॉजिटरी। सो हेयर इज द ऑप्शन सी। Now the next, a product will be purchased only if it is perceived to be giving the greatest benefit for the money. एक प्रोडक्ट जो होता है वो परचेज तब किया जाता है जब वो एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट अपने उसको बेनिफिशरी को दे रहा होता है, बेनिफिट उसके मनी के उस वर्थ में उसको होता है। नेम द फीचर ऑफ मार्केटिंग रिफ्लेक्टेड इन दिस स्टेटमेंट। क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू, एक्सचेंज मैकेनिज्म, नीड्स एंड वांट्स। अब यहाँ पर हमने, आपको याद हो तो हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले फीचर्स आते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ होता है कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू में लिखा होता है कि कस्टमर इज ऑलवेज रेडी टू पे द अमाउंट व्हेन ही और शी इज गेटिंग द वर्थ ऑफ दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। अगर उसको कोई चीज़ महंगी भी मिल रही होती है, समहाउ हम लोग मार्केट जाते हैं और हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी पसंद आ जाती है, हमें पता होता है कि ये महंगी है बट स्टिल वी परचेज। दिस इज कॉल्ड कस्टमर वैल्यू, कि कस्टमर उसको वैल्यू कर रहा है तभी वो उसको परचेज कर रहा है। सो हेयर इज द आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. There is a match a following. Management hierarchy. Management hierarchy
Involve defining the grouping activities? No. Involve establishing performance standards? No. It shows ये आपके लिए एक तरीके से पूरी बुक में से उन्होंने मिक्स एंड मर्ज करके आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन आपसे मांगी है. मैनेजमेंट हायरार्की की डेफिनेशन अगर हम पढ़ते हैं, इट शोज ऑर्डरली अरेंजमेंट and group efforts? No. Refer to different levels in the organization created as a result of authority, responsibility, relationship binding. तो मैनेजमेंट हायरार्की ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करती है. दिस इज ए. एंड नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन. अगर हम कोऑर्डिनेशन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, एक बार रीड करते हैं हम. इन्वॉल्व डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज, इन्वॉल्व एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस. नो. इट इज करेक्टिव एक्शन, एक्चुअल परफॉर्मेंस. ये यहाँ पर देखिए कंट्रोलिंग को कोट करता है. अब आते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन पर, ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेशन पर. कोऑर्डिनेशन को अगर हम पढ़ते हैं बेटा, इट शोज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट ऑफ इंश्योर्ड यूनिटी ऑफ एक्शन, रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव. कोऑर्डिनेशन कहता है कि जब आपका कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव है तो आप अपनी पूरी यूनिटी ऑफ एक्शन के साथ चलिए. तो बी में आता है यहाँ पर. और अब आपका बचता है ऑर्गेनाइजिंग. यहाँ पर है ग्रुपिंग द एक्टिविटीज, एलोकेशन, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप. ये ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है. दिस इज सी. अब आप देखिए ए के लिए 4th आना चाहिए. ऑप्शंस देखते हैं हम लोग. यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास ऑप्शन में, देखिए हमने जो सेलेक्ट किया था वो ए को 4 पे दिया था और बी को 3 पर दिया था, सी को 1 पर दिया था ऑर्गेनाइजिंग के लिए, और डी को हमने इधर दिया था. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन दिस इज द शॉर्ट केस स्टडी. सो we'll read the question first, then we'll read the case study. Identify the limitation of planning. तो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग हमें इसमें से निकालनी है जो भी इस केस में गिवन है हमारी. मिस्टर गुन अमरोहा, द जनरल मैनेजर ऑफ वेलवर्थ टेक्सटाइल business environment, and adapt the organization to the changes taking place in different dimensions in the business environment. However, it is still difficult for him to accurately assess the future trends. Now identify the planning limitation. अब आपको ये पढ़ना है कि planning leads to rigidity, planning may not work in dynamic organization, and planning does not give a guarantee of success, and planning reduce क्रिएटिविटी. तो अब आपको इसमें एक एप्रोप्रिएट लिमिटेशन निकालनी है इस केस के अकॉर्डिंग. देखिए वो ये कह रहा है कि वो टेक्सटाइल में है, वो सब कुछ स्कैन करता है, वो सारा कुछ चेंजेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डायमेंशंस पे भी वर्क करता है, लेकिन स्टिल डिफ़िकल्ट है कि एक्यूरेटली, जहाँ पर वर्ड आया एक्यूरेटली, यहाँ पर आपको फोकस करना है. देखिए एक्यूरेटली, हम कोई भी प्लानिंग जब करते हैं तो प्लानिंग कभी भी आपको 100% सक्सेस की गारंटी नहीं देती है. तो यहाँ पर देखो लीड्स रिजिडिटी, कोई ऐसा नहीं आया कि कुछ वो क्रिएटिविटी करना चाह रहा था और वो नहीं हो पा रही, तो रिजिड ऑप्शन इज नॉट हियर. इफ वी आर गोइंग ऑन द गारंटी ऑफ सक्सेस, ये भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है. लेकिन नेक्स्ट इज रिड्यूस क्रिएटिविटी. अगेन क्रिएटिविटी की कोई बात नहीं आई है. वो ये कह रहा है कि टाइम के साथ साथ बिजनेस एनवायरनमेंट को एक्यूरेटली एनालाइज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है. तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट. व्हेन वी आर मेकिंग ए प्लान, सिचुएशंस आर डिफरेंट. व्हेन वी आर अप्लाइंग द प्लान, सिचुएशंस आर डिफरेंट. सो दैट्स व्हाई हियर इज ऑप्शन बी, planning may not work in a dynamic environment. So let's have a question number 15. Question number 15. Name the step in the staffing process which enable the organization to offer opportunities for career advancement and facilities. To their employees by facilitating learning, thereby helping the organization to not only attract but also retain its talent people in the organization. Placement and orientation, recruitment, training and development, and performance
अप्रेजल। एक ऐसा स्टेप स्टाफिंग प्रोसेस का जो किसी को करियर एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटी भी देता है और उसको नई चीज़ें लर्न करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। व्हेन वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स, तो यहाँ पर देखिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज अप्रोप्रिएट आंसर, बिकॉज रिक्रूटमेंट में आप एप्लीकेशन लेते हो, प्लेसमेंट में आप किसी को प्लेस प्रोवाइड करते हो, परफॉर्मेंस अप्रेजल की इसमें कोई बात ही नहीं आई है, बिकॉज यहाँ पर आप किसी को लर्निंग एबिलिटी सिखा रहे हो, तो दिस इज अ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल डिसीजन। 3 डिसीजन होते हैं हमारे पास फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजन। अब हमारे को दिमाग में एक बार रिकॉल करना है कि ये जो डिसीजंस होते हैं ये कैसे आते हैं। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करते हैं हम जहाँ पर फिक्स एसेट्स होती हैं, करंट एसेट्स होती हैं, और अगर हम फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करते हैं तो डेब्ट एंड इक्विटी होता है, डिविडेंड की बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड अर्निंग होता है। हमने एक शॉर्ट रिकैप अपने माइंड में कर लिया। नाउ वी विल रीड द क्वेश्चन। Name Game of Clones, a reputed amusement company, has decided to run an advertisement for which is hiring various celebrities. The campaign involved an expenditure of rupees 150 crore. Identify the financial decision involved in the above case. अब यहाँ पर ये कौन सा डिसीजन है जिसको ये लगाने के लिए बात कर रहे हैं। देखिए एक कैंपेनिंग है जहाँ पर ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को हायर कर रहे हैं और 150 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्योंकि फाइनेंसिंग डिसीजन नहीं है, कोई इक्विटी या कोई डेब्ट की बात यहाँ नहीं हुई है, वर्किंग कैपिटल की भी कोई यहाँ पर बात नहीं हुई है। यहाँ पर वो एक बहुत बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो एक लॉन्ग टर्म डिसीजन हो गया। और डिविडेंड की भी यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है, दैट्स व्हाई इट्स ऑप्शन ए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, choice of capital structure. Identify the factors which is choosing about capital structure. Arth Nivesh Limited has a high fixed operating cost. The finance manager informed the chief manager officer CFO in this case the company decided to take a loan for its future financial needs, as its financial cost will also increase, leading to an overall इंक्रीज इन कॉस्ट। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट के ऊपर फोकस करते हुए हमें देखना है कि कंपनी डिसाइड कर रही है लोन लेने के लिए, और कंपनी की जो नीड्स हैं फ्यूचर के लिए वो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट को इंक्रीज कर रही है, ओवरऑल इंक्रीज इन कॉस्ट। अब यहाँ पर हमें देखना है कि अगर कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है तो कंपनी किन चीज़ों पर फोकस कर रही है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट एंड रिस्क कंसिडरेशन एंड कंट्रोल। तो कंपनी कहाँ कौन से फैक्टर को यहाँ पर अप्रोप्रिएटली डिस्कस करना चाह रही है। आप दोबारा से इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्योंकि जो चैप्टर 9 और 10 का क्वेश्चन होता है वो हमें 1 से 2 बार रीड करके फिर से करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जितनी भी टर्म्स आपको लगती हैं वो सब एक जैसी लगती हैं, मिलती जुलती लगती हैं, बट विल हैव टू फोकस, अवॉइड द मिस्टेक एंड रीड इट केयरफुली। कि यहाँ पर वो एक बहुत बड़ी ऑपरेटिंग कॉस्ट को फिक्स करने के लिए जा रहा है, और मैनेजर जो है वो CFO इन्फॉर्म करता है कि कंपनी को अगर आपने ये किया तो आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। अब यहाँ पर डेब्ट की कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो फ्लोटेशन कॉस्ट की कोई बात नहीं कर रहे हैं, रिस्क एंड कंट्रोल की भी कोई बात नहीं कर रहे हैं कि आपके हाथ से कंट्रोल चला जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो मैनेजर है वो बार बार बताना चाह रहा है कि आपको रिस्क है, तो सोच समझ कर जब डिसीजन लेना है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे रिस्क कंसिडरेशन की। सो here is the next question. Next question में Mr. identify the market where Mr. आशीष मांजरेकर can raise the fund. कि आशीष मांजरेकर जो फंड्स हैं वो कहाँ से रेज कर सकते हैं, ठीक है। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एली फार्मा लिमिटेड Mr. आशीष मांजरेकर wants to raise funds
थ्रू डेप्ट और इक्विटी, वो दोनों तरीके से अपने फंड्स को रेज करना चाहते हैं. एंड with the rupees 2 crore, for this purpose he approaches a well regulated financial market. वो financial market में गए हैं जो बहुत अच्छे से regulate होती है, well regulated financial market है, that facilitate the mobilization of long term capital. अब आपको बताना है, देखिए यहाँ पर मनी मार्केट की बात नहीं हो रही है क्योंकि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म है और ये वेल रेगुलेटेड भी नहीं है और ये जनरल पब्लिक के लिए भी बहुत कम वर्क करती है. ठीक है. सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, होलसेल डेप्ट मार्केट. मैंने आपको कहा था कि दो ऑप्शन बिल्कुल है ना अप्रोप्रिएट होते हैं. मनी मार्केट इज नॉट फॉर अस, होलसेल डेप्ट मार्केट ऐसी तो कोई मार्केट ही नहीं होती है, ये हमें कंफ्यूज कर रहे हैं. तो हमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है. सेकेंडरी मार्केट और कैपिटल मार्केट. देखिए सेकेंडरी मार्केट मार्केट का ही एक पार्ट है इटसेल्फ, बट ये अपने में कोई मार्केट नहीं है. अगर अपने में हम एक होलसेल मार्केट को पढ़ेंगे तो दिस इज द कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट का पार्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट. और जब आप कोई भी फंड को रेज करने जाते हो तो स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पर हम प्राइमरी मार्केट में जाते हैं एंड उसके बाद हम स्टेप इन हो जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में. तो हेयर दे आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल मार्केट. Question number 19. Companies are required to ensure that the dividend does not violate the terms loan agreement. Now, identify the relevant factor affecting the dividend decision. यहाँ पर आपको dividend decision के regarding बात बतानी है कि जब आप कंपनी जो है वो dividend does not violate the terms of loan agreement. Access of capital market? No. Legal constraints? No. स्टॉक मार्केट रिएक्शंस, ऐसा भी कुछ नहीं पूछा इन्होंने. कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं बेटा जब कोई भी लोन से रिगार्डिंग जब आरबीआई कुछ भी इशू करता है और उसमें कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं. इसको हम बोलते हैं कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर द डिविडेंड डज नॉट वायलेट द टर्म ऑफ लोन एग्रीमेंट. मतलब जब कंपनी को कोई लोन देता है तो ये कहता है कि जब आप अपना डिविडेंड बांटोगे तो मेरी किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. मुझको जो आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो या जो इंटरेस्ट दे रहे हो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. तो वहाँ पर वो यही बता रहा है कि जब कंपनी किसी को डिविडेंड देती है तो वो किसी लोन एग्रीमेंट को वायलेट तो नहीं कर रही है. तो यहाँ पर आता है, इसको हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स. ऑप्शन डी, this is the right answer. Now we'll have question number 20. Read the following statements carefully. अब हमें अगेन हम उसी क्वेश्चन पर आ गए, वापस से वही टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, क्या है इसमें. देखिए स्टेटमेंट 1, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट is to maximize the wealth of directors of the company. कि जब कोई कंपनी का मैनेजमेंट बढ़ता है तो वो क्या डायरेक्टर्स की वेल्थ को देखता है? आई थिंक इट्स नॉट. स्टेटमेंट 2, द फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ द कंपनी इज अनअफेक्टेड बाय द एक्सटेंट ऑफ रिटेन अर्निंग. क्या रिटेन अर्निंग से हमारी कंपनी की जो वेल्थ है वो अनअफेक्टेड रहती है? नो, हमेशा इफेक्ट होती है. तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमने तो कहीं नहीं पढ़े हैं, तो ये बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. हियर आर 20 MCQs टुडे वी हैव डिस्कस्ड. इन पार्ट 2 I'll come with the part 2 with all the subjective questions. Here we will discuss what the actually board examiners expects from your sheet. So if you want to score 90 plus, तो बी विद अस एंड मिलते हैं हम पार्ट 2 में. थैंक यू सो मच.